میں آپ کو نمبر ڈائل کر دیتا ہوں, وہ بہت اچھی ہے. اگر آپ بھی اس سے بات کرو گی نا تو آپ بھی اس کی دیوانی ہو جاؤ گے. اس نے کہا نہیں کرتی بہت, میں اس سے بالکل نہیں کروں, کوئی اتنا مجھے اپنی جان سے زیادہ پیاری لگتی ہے, میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. اس کا چہرہ جو ہے نا دیکھنے والا تھا, اس کے پریشر چہرے کے, ہاں ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ, صبح بخیر. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ ہمارا تمام بہن بھائی دیکھنے والا خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ, شکر ہے اللہ تعالیٰ کا, ہم سب بھی بالکل خیر خیریت سے ہیں, آپ سب بہن بھائیوں کی دعاؤں سے. ہاں جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ, صبح بخیر. امید کرتے ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, آپ سب بہن بھائیوں کی دعاؤں سے. ماشاءاللہ. اور یہ میں نے لسی اٹھائی ہوئی ہے, اور یہ لسی اور مکھن اس کے اندر ہے, وہ بھجوانا ہے ساسو ماں کے پاس. صبر کرے. وہ یار کافی لیٹ ہو گئے ہیں. لیٹ ہو گئے ہیں. ویسے صبح کے ٹائم زین آتا تھا, وہ لے جاتا تھا, لیکن آج زین نہیں آیا, اور حبیب اور قبیب دونوں گئے تھے پڑھنے کے لیے, وہ ابھی آئے ہیں. تو ویسے بھی ساسو ماں لیٹ کھانا کھاتی چلے ہے. آ جائیں پھر دیکھ کے آتے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہنا ہے, ویڈیو کو سکپ بالکل نہیں کرنا, ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے. اب چلتے ہیں جی امی کے پاس, کیونکہ امی جان جو ہے نا وہ ہماری چھوٹی سسٹر کے گھر پہ ہیں. یہ پکڑے, میں کوئی چیز بھول کر آ رہی ہوں, لے آتی ہوں. چلیں جلدی لے آؤ. ماشاءاللہ موسم دوسرا دن ہے, بالکل صاف ستھرا ہے, کوئی بادل وغیرہ نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی دھند وغیرہ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ کل بھی سورج بہت زبردست نکلا تھا, آج بھی بہت زبردست نکلا ہوا ہے. کیا بھول گئی تھی آپ؟ آپ کا موبائل. میرا موبائل, ہاں موبائل, کال والا موبائل. ابھی بلانے نہیں دیا. یہ جو ہے نا اس پہ ویڈیو بنتی ہے صرف, اور باقی کال والا میرا موبائل بہت پرانا موبائل ہے بیچارہ, کافی اس نے میرا ساتھ دیا ہوا ہے. اب بیچارہ بوڑھا ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک اس نے رکھا ہوا ہے. ہاں لیکن الحمدللہ شکر اللہ تعالیٰ کا, جو بھی چیز میرے پاس ہوتی ہے نا وہ بڑی محفوظ رہتی ہے. محفوظ رہتی ہے بے شک. یہ میری عادت ہے, میں بڑا سنبھال کے رکھتا ہوں. ہاں جی, یہ شروع سے میری عادت ہے. الحمدللہ ہر چیز کو سنبھال کے رکھتا ہے, اپنی وحید کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا ابو جان نے پتہ نہیں ناشتہ کر لیا؟ ہاں میں وہ پتہ کر گئی تھی, ماما جان نے ناشتہ کر لیا. اچھا اچھا. اچھا فی الحال یہاں سے کیمرہ بند کرنا پڑے گا. یہ بھی اپنا ناشتہ کر رہی ہیں ماشاءاللہ. کل نا مجھے اتنا زیادہ پسینہ آیا, کل بہت زیادہ گرمی محسوس ہو رہی تھی. اگر اسی طرح سورج صحیح طرح سے نکلتا رہا نا تو دن کے ٹائم کافی گرمی محسوس ہوتی ہے, اور گاڑی کے اندر تو اتنی زیادہ ہیٹ محسوس ہو رہی تھی, کیونکہ شیشہ گرم ہو جاتا ہے نا سورج کی جب کرنیں پڑتی ہیں, تو اس کی بہت زیادہ تپش محسوس ہوتی ہے گاڑی کے اندر. تو گاڑی کے اندر بھی کافی گرمی محسوس ہو رہی تھی. تو آج بھی دن ویسا ہی نکل رہا ہے جیسے کل تھا. ڈرا دیتے تو ہونے تو ہمیں ابھی میں ڈرانے والی تھی, آپ نے پیچھے کیوں دیکھا؟ شکر ہے میں نے دیکھ لیا, ورنہ سیریسلی مجھے بہت زیادہ جھٹکا ملتا. میں آپ کو بس ایسے ڈرانے والی تھی, فوراً آپ نے پیچھے دیکھ لیا. جھٹکا تو مجھے تھوڑا بہت لگا اندر سے,
बाहर से झटका मैंने नहीं खाया। अच्छा ये सुबह सुबह के टाइम चारे के ऊपर जो ना बर्फ जमी हुई थी। हाँ क्योंकि खुश्क कोहरा पड़ा हुआ था, कोहरा। अब शबनम नज़र आ रही है क्योंकि बिल्कुल मसला साफ था ना ही धुंध थी और ना ही कोई बादल वगैरह थे। हाँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए जो है ना सुबह के टाइम ये चारे के ऊपर और ये जो घास वगैरह इधर बन्नों के ऊपर है ना, इस पे वो कोहरा पड़ा हुआ कोहरा था। पड़ा हुआ है, ऐसे जो है ना वो सफ़ेद सफ़ेद जैसे बर्फबारी होती है। बस ये थोड़ी देर के बाद ये कोहरा खत्म हाँ नहीं होगा क्योंकि सूरज निकल आया है ना। हाँ सूरज निकल आया है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा प्यारा निकल रहा है। कल तो जब आप वीडियो बना रहे थे आपको बहुत ज्यादा पसीना आया हुआ था। पसीना आ गया था मुझे लगा सीरियसली। कि यहाँ मैंने कोट उतारना है, मुझे गर्मी हो रही है, मुझे पसीना आ गया है। हाँ, आज भी दिन वैसा निकला हुआ है जैसे कल था। हाँ जैसे कल था वैसे दिन है माशाल्लाह। यहाँ से साग तोड़ा था आप लोगों ने। हाँ अहमद भाई तो आप उधर चले गए थे, वैसे अहमद भाई ने वीडियो बना ली थी और भाभी सब्बा और मैं इधर ही हम जो ना ये साग पटते रहे और काफी सारा हमने साग ये पकती रही इधर से। अच्छा आप भी है साग इधर ये नजर आ रहा है, बाकी लेकिन तो बड़ी होगी है वो सरसों। लेकिन हमें साग बनाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बनाता है ना तो हमारे घर पे जरूर भिजवाते हैं। वो मामू जान कहता था जब सुबह के टाइम जाता था शाम को वापस आता था तो पूछते थे मामू आप कहाँ गए थे, तो कहता था बेटा मेरी 100 कांजन है, मैं जितना मना मेरे में समझ रिश्तेदार बे कोनी रिश्ता जिवें हुंदे मेरी दोस्ती मेरा सब कुछ जेड़ा ना दरे है मेरी 100 कांजन है। कांजन के दुकान। ओ इमे अभी रिश्ता मेरा ढेर है, मैं जितना मना पिया अच्छा ता मेरे को भी हर चीज हो मेरे देने से प्यार मोहब्बत रख दे मेरे नाल तो ये चीज को कांजना देन सेरा की दी जबान है। अच्छा हाँ चलें जी, मतलब के ताल्लुक वगैरह उसको कांजन बोलते हैं। जी हाँ जी हाँ अच्छा अच्छा तो समझा दिया करो ना यार। ताल्लुक को कहते हैं। आप देखें जो हमारे देखने वाले हैं जो उर्दू स्पीक है तो उनको पता भी नहीं है कि कांजन किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं। तो इसलिए जो है ना फिर समझा दिया करते हैं। जो सराकी हैं उन्हें तो समझ आ गई होगी कि मैं क्या कह रही हूँ। वैसे मैं भी सराकी हूँ, मैं कौन सी वो क्या कहते हैं अंग्रेजन हूँ, मैं भी सराकी हूँ। अच्छा वो 2025 वाला लतीफ़ा वैसे सुना दो। बस ना हैं? सुना ना सुना ना बस करो नहीं नहीं यार आज ये बताऊंगा मेरी क्योंकि बात सुनिए, मेरे ये- भाई का कमेंट आया है, हम्म, वो इंडिया वाला रवि, हम्म, उसने कहा कि भाई आपने ज़रूर बताना है। अच्छा जी हाँ वैसे मेरी गलती नहीं है हम्म। ना ही आपकी है बस ये लतीफ़ा बन गया। अच्छा सीरियसली जब वो मुझे बात याद आती है ना, मैं अकेला होता हूँ तो मेरी जो है ना हंसी निकल जाती है, और वो भी कहाँ से, वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसी निकल जाती है। जो लतीफ़ा बनाना वो बहुत बड़ा लतीफ़ा है। बहुत बड़ा लतीफ़ा है सीरियसली। बस क्या करें, वैसे मुझे भी याद आती है ना, मुझे भी बहुत ज़्यादा हंसी आती है कि देखें मैंने क्या किया। यार बस क्या करूँ, आपको क्या बताऊँ, आप सब बहन भाइयों को। अच्छा चलते रहेंगे हम्म, और बताते हैं लतीफ़ा, अच्छा लस्सी देकर वापस आते हैं फिर इधर बातचीत करेंगे। अच्छा हाँ, क्या चलें फिलहाल गेट को अस्सलाम वालेकुम। क्या नहीं हाल है भाई का भाभी घर है। भाई? चलें जी, अभी मेरे ये बाजू थक गया है, ऑफ कैमरा थोड़ा मैं सांस ले रहा हूँ, आगे भी ऑफ कैमरा आ रहे हैं, हाँ, इसलिए जो है ना बंद। फिर आगे गुजर के ऑन करते हैं। अच्छा अब जो है ना आप सब बहन भाइयों को लतीफ़ा वो सुनाता हूँ, जिसने हंसना है ना तो अकेले बैठ के हंसना हंसी रुकेगी नहीं सीरियसली। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। अच्छा उस रास्ते पे चल के ना फिर बताता हूँ, हाथ भी चेंज कर लूँगा क्योंकि ये जो है ना बायां बाजू है ये जल्दी थक जाता है। थक जाता है और वजन है ना मोबाइल का भी। अच्छा तो हुआ यूं है, बता दूं बता दो है? बता दो। इसने मेरा मोबाइल उठाया कॉल वाला, ठीक है, और उस पे जो है ना ये व्हाट्सअप चेक कर रही थी, फिर एक नंबर आया इसके आगे आंखों के सामने, इसने कहा कि ये किसका नंबर है। मैंने बोला ये लड़की का नंबर है। इसने कहा कौन लड़की है। मैंने कहा है कोई लड़की, उसका नंबर है।
इतनी कालें हुई खड़ी हैं यहाँ पे, इतनी कालें करती है आपको। बताओ मुझे किसका नंबर है। मैंने कहा यार लड़की का नंबर है, मैं बोल तो रहा हूँ लड़की का नंबर है। बस ये जो है ना ऐसा ऐसा इसका चेहरा लाल होता गया और गुस्से से जो है ना बिल्कुल ये इसकी आंखें भी लाल हो गई। फिर मुझे बोला कि कैसी लड़की है। मैंने कहा बहुत हसीन लड़की है, बहुत खूबसूरत है और मुझसे बहुत ज़्यादा वो प्यार करती है, बहुत ज़्यादा मैं उसे अच्छा लगता हूँ। कहती है आपको। मैंने कहा मुझे भी वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है। तो फिर कहती है कि आप। मैंने कहा मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। तो इसकी हालत जो थी ना देखने वाली थी। ये जो है ना फिर ऐसे जो है ना बिगड़ती गई, इसका चेहरा लाल होता गया, आंखें लाल होती गई। फिर इसने बोला मोबाइल मुझसे जो है ना इसने फिर छीन लिया। मैं इसे कहता रहा कि मोबाइल मुझे दो। इसने कहा मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, मैं जा रही हूँ अम्मी के पास, अब्बू को बताती हूँ, मेरे अम्मी अब्बू को, भैयों को बताती हूँ, सबको बताती हूँ, सबको ये दिखाती हूँ। आपके यही काम है, आपको शर्म नहीं आती। अच्छा जब मैंने पूछा उसके घर जाते हो, आपने कहा हाँ। इसने बोला कि आप उसके घर जाते हो, उसको मिले हो। मैंने कहा हाँ मिलता हूँ, घर भी जाता हूँ। फिर कहती है अब जाओगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। तो इसके जो इम्प्रेशन थे ना सीरियसली मैं बस बयान भी नहीं कर सकता जो इसकी हालत थी उस टाइम। जो आप ये हालत जो बनाई थी ना, ये आपने बनाई थी मेरी। आपको पता है हर बात आप जानते हो, हर चीज़ का पता है, मेरा दिमाग मेरा दिल अब सब जानते हो। लेकिन फिर भी आपने मेरे साथ जो हालत बनाई ना, सीरियसली वो दिन मुझे याद जब आता है, मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। अच्छा ये जो है ना बिल्कुल गुस्से से लाल पीली होगी और इसने कहा कि मैं जा रही हूँ, मैं हनीफ भाई के पास भी जाती हूँ क्योंकि 24 घंटे हनीफ भाई आपके साथ होते हैं। उसको शर्म नहीं आती। कौन है? अनम है। हाँ। उसको भी शर्म नहीं आई। मेरा भाई होकर मैं बड़ा भाई उसे मानती हूँ, उसने भी मेरे साथ ये किया, वो आपके साथ मिला हुआ है। बस मैं कुछ नहीं सुनने वाली। मैं अभी जाऊँगी, अखबार को बुलाती हूँ, मैं अभी जाती हूँ हनीफ भाई के पास और सब भाइयों को सबको बताती हूँ। मैं जो है ना ये बस मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा। ये इस तरह इसकी हालत हो गई ना। उस बस टाइम मेरी हालत भी ऐसी थी सीरियसली। उस टाइम मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। अजीब सी मेरी हालत, अजीब सी मेरी तबीयत हो गई। वो भी जो आपने बातें की ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं उसके घर जाता हूं, बहुत प्यारी है, बहुत हसीन है। इस तरह की बातें जब आपने की ना, तो सीरियसली मेरा जो है ना दिमाग आउट हो गया था। और बाकी वो बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर आपकी वही बात है। अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी लगती फिर है। वही बात। अच्छा फिर ना इसने कहा कि मैं अभी जाती। मैंने कहा आपने कहीं नहीं जाना, इधर घर पे बैठी रहो। इसने कहा कि मैं जा रही हूँ, मैं सबको बताती हूँ और ये जो आप काम कर रहे हो ना ये अच्छा नहीं कर रहे, आप बहुत बुरा कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती, आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह की आप बातें मुझसे कर रहे हो। ऐसे जो है ना बस ऐसे ऐसे इसकी स्पीड जो है ना वो बढ़ती चली गई। फिर मैंने बोला अच्छा मैं आपको नंबर डायल कर देता हूँ, वो बहुत अच्छी है, अगर आप भी उससे बात करोगी ना तो आप भी उसकी दीवानी हो जाओगे। इसने कहा नहीं करती बहुत, मैं उससे बिल्कुल नहीं करूँगी इतना। इसी तरह इसकी हालत जो है देखने वाली थी और मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई, इतना ज़्यादा हंसा मैं, हंस हंस के मेरी आंखों से जो है ना पानी बह रहा था। लेकिन ये फिर भी इसे पता नहीं चल रहा था कि क्या मसला है, इतना क्यों हंस रहा है। ये सोच रही थी कि इसे इतना वो हो गया है, उससे प्यार हो गया, इसे शर्म भी नहीं आती, ये मेरे सामने इस तरह की बातें कर रहा है, मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी लगती है, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये इसका चेहरा जो है ना देखने वाला था, इसके प्रेशर चेहरे के हाँ बड़ा मज़ा आया। फिर मैंने कहा यार आपको नंबर डायल कर देता हूँ, आप उससे बात कर लीजिए। नहीं करती बात, इधर फेंको मोबाइल को, ये वो है। अच्छा वो इशा की नमाज़ का टाइम हो रहा था, फिर मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ नमाज़ अदा करने के लिए। तो इसने कहा कि मोबाइल मैं नहीं दूँगी आपको। मैंने कहा यार मोबाइल दो, किसी की कॉल आ जाती है, तो मस्जिद थोड़ा दूर है हमारे घर से। तो फिर इसने कहा बिल्कुल नहीं दूंगी। मैंने कहा यार मोबाइल मुझे दो। इसने कहा कि आप नंबर जो है ना वो डिलीट कर दोगे, आप वो जो कॉलें वगैरह हुई है ना वो आप डिलीट कर दोगे। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मैंने वज़ू बनाया हुआ है,
मैं नमाज अदा करने के लिए जा रहा हूँ, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा, मैं बिल्कुल भी ना ही नंबर डिलीट करूँगा और ना ही कोई मैसेज तो नहीं थे, काले वगैरह मिस कॉल वगैरह थी, तो मैंने कहा वो मैं नहीं डिलीट करूँगा। मामू है मामू, क्या हाल है मामू? ये कौन आ रहा है? वही मिठे मिठे मामू कितना गया कितना वो लस्सी चावा ने नानी में कुड़े चावला बाल्टी जल्दी जल्दी को करें जमा वाला खीर गिनने कैसे बोलते हो कि याद होने मामू? हाजो लो भाई लस्सी दे तो रोटी खावनी है, इंतजार बैठन थे कि याद होने हैं? अभी कुछ खा रहे हो? गंदे बच्चे जुलो। अच्छा मुझे नहीं मिलना है सैमो, फुप्पो से नहीं मिलना बस अन्नम आप मेरी फुप्पो तो सैम नहीं है, बस अन्नम से मैं मिलूंगी। पहले बात भूल गई थी। भूल गई थी है ना, भूल गए थे, याद क्या नहीं। अच्छा फिर जब मैंने बोला ना मैं बिल्कुल भी नंबर डिलीट नहीं करूँगा, आप मुझे मोबाइल दे दो, मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ फिर बातचीत होती है। तो इसने किसी तरह मुझे मोबाइल दिया, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए गया, नमाज़ पढ़ के जब वापस आया तो ये वेट कर रही थी, इंतज़ार में थी, खड़ी थी बाहर। जब मैं आया तो इसने बोला बताओ मुझे कौन है वो लड़की? मैंने कहा यार बताता हूँ, सब्र तो करो, बताता हूँ। इसने कहा बताओ मुझे कुछ नहीं सुनना और बात, मुझे ये बताओ कि वो लड़की कौन है। उधर क्यों यार खड़ी हो गई है? आंखों के सामने सूरज जाता है इसलिए। अच्छा मैंने कहा यार थोड़ा सब्र रखो, अंदर चलते हैं तो आपको बताता हूँ वो कौन है। फिर इसने बोला कि मैं रास्ते से होके ना वापस आ गई हूँ, मैं हनीफ भाई के पास जा रही थी, लेकिन फिर मैं वापस आ गई। हाँ मुझे ख्याल आया उस टाइम, मैंने कहा कि अल्लाह की बंदी आप उधर जो जा रही हो वो तो एक जैसे हैं, कॉल की होगी, कोई मैसेज कर दिया होगा कि आपने इस तरह की बात नहीं बतानी। फिर मैंने कहा कि मेरे जाने का उधर फायदा नहीं है, इसीलिए फिर मैं पीछे चली गई घर की तरफ। अच्छा फिर अंदर चले गए, मैं इसको किसी तरह ले गया और इसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और इसका चेहरा जो है ना बिल्कुल गुब्बारा बना हुआ था, जैसे हवा भरी हुई हो, ऐसे जो है ना सूज गया था इसका चेहरा। अच्छा इसके ये रोती भी रही अकेली, बहुत ज्यादा मैं रोई थी। अच्छा अंदर चले गए कमरे के, फिर मैंने बोला कि चले नंबर डायल करता हूँ, हम बात कर लेते हैं। तो ना बाहर आ गए, फिर बाहर उधर खड़े थे खिड़की में। हाँ खिड़की के बाहर आए थे, मैं तो वैसे बाहर खड़े थे, अंदर नहीं गई थी उसी जगह पे। फिर आपने मुझे बुलाया और बच्चों को भी बुलाया, हबीब और हमारे। नहीं पहले मैंने अकेले आपको वो किया। हाँ अकेले। फिर मैंने कहा ये नंबर देखो डायल करो, इसने नंबर डायल किया व्हाट्सएप पे, वो डेटा ऑफ था। इसने कहा आपने उसे बोला है, आपने डेटा बंद करवा दिया, उसे फ़ोन करके आपने बोला होगा। मैंने कहा यार कसम से मैंने नहीं बोला। तो अच्छा मैंने कहा दूसरे मोबाइल से जो है ना आपको नंबर डायल कर देता हूँ, ऐसे व्हाट्सएप पे छोड़ो, डेटा बंद है, चले इस तरह बात हो जाएगी। फिर मैंने कहा नंबर ख़ुद बताओ। इसने बोला कि आगे ये पता नहीं कहाँ का नंबर है, वो हमारा कोड है ना 9292 जमा 92 फिर 300, इसी तरह नंबर आगे होता है। तो जब मैंने बोला 0300, इसने कहा इधर तो ज़ीरो है नहीं, आप ज़ीरो क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा यार ये व्हाट्सअप नंबर ये हमारे पाकिस्तान का कोड है, जमा 92, ये हमारे पाकिस्तान का कोड है, तो आप जो है ना यकीन रखें, मैं नंबर डायल कर देता हूँ। फिर मैंने जब ज़ीरो लिखी, आगे नंबर लिखा, इसने कहा इस तरह तो नंबर है नहीं, इस तरह क्यों लिख रहे हो? क्योंकि वो व्हाट्सएप का नंबर था ना, तो आप वो सिम पे कॉल कर रहे थे। हाँ सिम पे कॉल कर रहा था। फिर मैंने नंबर डायल किया, जब नंबर डायल किया तो उस वक्त जो है ना कॉल नहीं जा रही थी, बिल्कुल आगे चुपचाप नंबर कट हो गया। इसने कहा आपने उसे बोल दिया है, आपने नंबर भी बंद करवा दिया है, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने इसे लस्सी दी, मैंने कहा कि जल्दी जल्दी लस्सी ले जाओ, रोटी खानी होगी।
बेचारी जल्दी जल्दी ये लस्सी देकर और बाल्टी धुलाई करके ले जाइए। अच्छा, इसने बोला कि आपने नंबर ऑफ करवा दिया है, आपने कॉल की है, मुझे अब बिल्कुल यकीन नहीं है आप पे। मैंने कहा यार नेटवर्क का मसला हो सकता है, आप फिर डायल करें नंबर। जब डायल किया तो कॉल जाने लगी, फिर मैंने आवाज़ ओपन कर दी, स्पीकर को जो है ना वो ओपन कर दिया, तो कॉल जा रही थी। ऐसे जो है ना ऐसे मोबाइल को पकड़ के ऐसे खड़ी है, ऐसे हैरान होके। फिर कॉल अटेंड हुई तो आगे आवाज़ आई हेलो। इसकी चुप बिल्कुल खामोश थी इसे आवाज़ की समझ नहीं आई। फिर ये खामोश होकर खड़ी रही। फिर वहाँ से आवाज़ आई हेलो हेलो हेलो। तकरीबन कोई 5-6 दफ़ा उसने हेलो की ना। हाँ 5-6 हाँ। दफ़ा। बाद में इसके जहन में आवाज़ का पता चला कि ये आवाज़ किसकी है। फिर इसने बोला हबीब हो, उसने कहा जी हाँ हबीब हो। मुझे कोई हंसी आई। अच्छा वो भी बता दे मेरे साथ अच्छा क्यों हुआ। अच्छा, नंबर था इसी का जिसने नंबर पकड़ा हुआ था ना, ये इसी का नंबर था, क्योंकि ये नंबर पे गौर नहीं करती। पहले इसके पास था नंबर वो इसके भांजे का, मेरा भतीजा इसका भांजा है, उसका नंबर इसने अपने मोबाइल में डाला हुआ था। फिर वो सिम ले गया, फिर हमने न्यू सिम निकलवाई इसकी। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में महीने डेढ़ हो चुका होगा, 2 नहीं अहमद भाई लोगों से उनके आने से पहले नहीं निकलवाई थी। पहले निकलवाई? हाँ अच्छा, तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए हैं, तकरीबन 1.5-2 महीने हो चुके होंगे। पहले तो वो सिम बंद करवाते रहे। हाँ सिम फिर उन्हीं दिनों। ये बाद में निकलवाई थी? नहीं यार, अच्छा होगी, चलो मुझे पता नहीं है। उनके आने से पहले निकलवाई थी हमने, तकरीबन 1.5-2 महीने हो चुके होंगे। हाँ, ऐसे है। अच्छा, इसका नंबर हमने निकलवाया यू का, और नंबर भी इसी का था। ये खुद मुझे कॉलें करती थी या मैं कॉल करता था, तो वो सारी डिटेल डेटा तो व्हाट्सएप में मौजूद रहता है ना। तो फिर अपने ही नंबर को खुद को पकड़ के मुझे परेशान कर रही थी वो ना असल में जैसे सिम डाली आपने मोबाइल के अंदर, अच्छा वो तो मेरे पास थी, लेकिन मुझे पता नहीं था मेरा नंबर कौन सा है, इसीलिए फिर मुझे पता नहीं चला। मैंने कहा कि ये नंबर किसका होगा, इतनी कॉलें आई हुई हैं, आपने भी कॉल की। और फिर अच्छा जैसे मुझे शक हुआ, और फिर आपने जो ना बात को बढ़ाते गए, अच्छी है मैं उसके घर जाता हूँ, और ये वो फिर इस तरह आप करते मैंने गए। तो कोई भी झूठ नहीं बोला, आप अच्छी हो ना, मैंने बोला अच्छी है, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यारी लगती हो, और आप भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। मैं भी अपनी जान से ज़्यादा आपको प्यार करता हूँ, अच्छा, क्योंकि आप मेरी घर वाली हो। तो कोई भी बात मैंने झूठ नहीं बोली, बिल्कुल मैंने सच कहा। और इसकी हालत जो है ना वो बिगड़ती चली गई, और इतना हम हंसे बस क्या बताएं। फिर हबीब आ गया, खुबैब आ गया, हमारी बेटी भी आ गई। जब मैंने नंबर दिखाया, मैंने कहा ये देखे नंबर किसका है, उन्होंने कहा ये तो अम्मी का नंबर है मैंने कहा आपकी अम्मी को पकड़ लिया है देखिए अब मैंने देख लिया ना अपना नंबर, आपके मोबाइल में देख लिया है, अब मुझे पता चल गया कि ये मेरा नंबर है। अच्छा मैंने नहीं देखा हुआ था सीरियस। अच्छा, इसे याद भी नहीं था और पता भी नहीं था अपने नंबर का, और मुझे थोड़ा सा वो हो गया। मैंने जब इसने पूछा ना, इसके अंदाज ही कुछ ऐसे थे और इनके चेहरे के इंप्रेशन ही कुछ ऐसे थे, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी बहुत जो है ना वो कर लेते हैं हंसी मजाक इससे। यार आपकी हंसी मजाक थी और मेरी जान निकल रही थी सीरियसली। जैसे आप कहते थे वो इस तरह है, वो इस तरह, बहुत जैसे जब आपने कहा कि वो बहुत प्यारी है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, तो सीरियसली बस मैं खत्म होगी। मैंने कहा कि इतनी बात आगे बढ़ गई है। जब मुझे बात याद आती है ना, हंस के मैं पागल हो जाता हूँ, और जिसको भी मैंने बताया है वो हंस के पागल हो रहे थे। तो ये है जी मेरी बीवी, अच्छा प्यारी अच्छा जब भैया नीप गया तो उसने कहा कि आज भाभी ने खुद को पकड़ लिया। मैं परेशान हो गई, मैंने कहा कि भाई क्यों इस तरह कह रहा है। फिर पता चला कि वो मेरी बात कर रहा है, वो भी बहुत ज्यादा हंसा। जी मामू, किसको बुला रहे हो? चले सबकी हंसी बन गई। और वैसे जो है ना, देखें मैं एक अनपढ़ हूँ, मेरी तालीम नहीं है। जब शुरू से मेरी शादी होकर आई थी ना,
बिल्कुल जो है ना इस चीज़ों पे मैंने कभी तवज्जो नहीं की थी और ना ही मुझे पता था। एक दिन इसकी सिम गुम हो गई थी हाँ हमारी जैज की। जैज़ की। अच्छा ये इधर आया कहने लगा कि मेरी सिम गुम हो गई है, मुझे मिल नहीं रही। तो मैंने कहा कौन सी सिम? कहने लगा वो जैज़ वाली सिम थी। अच्छा ये ढूंढता ढूंढता ये चला गया अपने काम की तरफ। फिर भाई आया, भाई मुश्ताक, वो कहने लगा कि अल्ताफ़ की सिम मिली? मैंने कहा नहीं नहीं मिली। फिर वो भाई अब्बास पूछने लगा, बेचारे की सिम थी, अच्छी सिम थी, वो क्या कहते हैं मैं भूल मोबिलैंक। मोबिलैंक की सिम थी, वो बेचारा ढूंढ रहा था। मैंने कहा भैया जैज और मोबिलैंक आप खुद सोच लें। अच्छा मैंने कहा कि मुझे तो कहने लगा कि जैज़ की सिम है, आपको कह रहा था कि मोबिलैंक की सिम है, ये कुछ चक्कर। ये कुछ चक्कर है, ये हमें जो है ना कुछ चक्कर दे रहा है। तो देखे जिस बंदे को कोई चीज़ का पता ना हो, बिल्कुल कोई चीज़ ना जानता हो, ऐसे समझे कि जैसे बच्चा हो ना, बच्चे को किसी चीज़ की समझ नहीं होती। हाँ जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या किसी और मुल्क के जैसे इंडिया से, तो उनको बता दूं जैज़ मोबिलैंक ये एक ही सिम है, एक ही सिम के दो नाम है, मोबिलैंक भी बोलते हैं जैज़ भी बोलते हैं। तो इसको ये नहीं पता था कि जैज़ की सिम या मोबिलैंक की सिम एक ही है। इसने बोला कि मुझे कहता है जैज़ की, आप लोगों को बोलता है मोबिलैंक की, ये कोई चक्कर है, ये कोई और चक्कर हो सकता है लगता है। अल्लाह के बंदे आपने मोबाइल मुझे दिया, वो छोटे वाला मोबाइल था आपके पास, जब आपने दिया कि आपने कहा कि चार्जिंग पे लगा, तो मैं सोचती रही ये कैसे चार्ज पे लगाएंगे, ये किस तरह होगा, ये क्या। फिर मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा कि मुझे बताएं ये चार्ज पे कैसे लगाते हैं। फिर आप आए थे खुद और चार्ज पे लगा कर दिया, फिर मुझे पता चला। बिल्कुल जो है ना पता भी नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं है, बस नाम तो सुनती थी लेकिन कभी मैंने उठाया नहीं हुआ था और उसे चलाया भी नहीं हुआ था, समझ भी नहीं लगती थी। दुए अच्छा ये था जी लतीफ़ा, ये इसने काम किया था मेरे साथ। अच्छा किस दिन हुआ था? परसों परसों वाले दिन। परसों रात को। अभी भी सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है जब वो मुझे बात याद आती है। अच्छा जब आप उस रात को नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे, रोड पे जा रहे थे, तो आपकी आवाजें घर तक आ रही थी, मस्जिद तक मेरी हंसी नहीं रुकी सीरियसली। बहुत ज्यादा। इसने जो ना खुद को पकड़ लिया था मेरे साथ। अल्लाह माफी। अच्छा हम चलते हैं अंदर जी, बहनों से, हाँ बहनों से मिलते हैं, अम्मी जान से मिलते हैं, उसके बाद जो है ना फिर वापस चलेंगे घर इंशाल्लाह। अब चलते हैं जी घर, और यहाँ पर भी मैंने अपनी सिस्टरों को बताया, वो भी हंस हंस के पागल हो रही थी इसके लतीफ़े से। जब पहले आपने बताया था ना, सासू माँ परेशान बैठी थी, पता है मैंने तफसील के साथ डिटेल के साथ जैसा हुआ ना वैसे मैंने बताया, तो सब पहले परेशान हो रही थी। जब बात आई मैंने कहा, जब आगे बोला हबीबुल्लाह और जब इसने पहचाना उसकी आवाज़, तो उस वक्त जो है ना क्या इम्प्रेशन थे इसके। बहुत ज़्यादा हंसी आई। और जिन बहन भाइयों को ये लतीफ़ा अच्छा लग गया है तो लाइक भी ज़रूर कर दें वीडियो को। बस अब इस वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का रखें ख्याल और हमें रखें दुआ में याद। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।